Hello everyone. Welcome back to the next session of this chapter first of science of class 8. You are with me in Saraswati coaching classes and I am Mrs. Varsha, your science teacher and maths teachers too. Now in previous session we have discussed about what is meant by crop, what is meant by agriculture and what are the practices necessary फॉर द एग्रीकल्चर, जिसमें पहले हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इवन आई हैव टोल्ड यू कि वाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी फील्ड में, फार्म में, खेती के लिए फर्स्ट स्टेप जो होती है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों होती है? वो इसलिए होती है जहां पे भी हम कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, सीड सो करने जा रहे हैं, वो जो सॉइल है दैट शुड बी रेडी फॉर कल्टीवेशन, रेडी फॉर सोइंग द सीड्स फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, ताकि हमारा जो क्रॉप है वो बहुत ही हेल्दी और अच्छे से आए, हमारा जो यील्ड है वो अच्छा हो. ठीक है. नाउ दिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टास्क और 3 सब थिंग्स, दैट इज फर्स्ट plowing, leveling and manuring. Now plowing. Plowing is also known as tilling. This is also known as tilling. Tilling means what? In short, turning the soil. Turning the soil. The lower layer is brought up to the top level and means rotation of the soil. जो ऊपर की लेयर है वो नीचे जाती है, नीचे की लेवल है जो ऊपर आती है. नाउ ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा किस इक्विपमेंट या किस मशीन या किसके जरिए करते हैं? प्लाविंग के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज की जाती है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो भी यूज की जाती है. सी इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लाव. ओके. ऑन स्मॉल स्केल इट इज डन विद हेल्प ऑफ hoe as well. Even if the piece of land is very big, means 10 acre, 15 acre or hundreds of acre of land is there, that time cultivator is also used. ठीक है. अभी ये प्लाव क्यों होता है मैं पहले आपको बताती हूँ कि what are the measures or because of which we are using to plow our field. ये जो प्लाव होते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड प्लाव की बात करें तो दैट इज अ बिग वुडन शाफ्ट. ठीक है. एक बहुत बड़ा ऐसा वुडन शाफ्ट होता है एंड उसको पैरेलली एक वुडन बीम होता है. ये वुडन बीम होता है. दिस इज कॉल्ड एज प्लाव शाफ्ट. ओके. इसको this is a long strong wooden shaft. How is that structure of plow? As I told you, this is a traditional plow in which there is a long wooden beam. It is very strong and long wooden beam that is known as plow shaft. That plow shaft is connected to the again one small wooden beam. Okay. It is completely perpendicular to this plow shaft. Why? Because at these 2 points there is a place where we can put this beam on the shoulders of bullocks so that they can carry it. Now come to the back. This plow has a bent wooden block which is having at the end very sharp iron tip. मतलब ये जो पोर्शन ये पूरा आयरन का बना हुआ होता है एंड दैट इज नोन एज प्लाउशेयर. क्या कहते हैं इसे? प्लाउशेयर. एंड हियर दैट इज द हैंडल. यहाँ पे क्या होता है? हैंडल. नाउ हाउ डज इट वर्क? When the pair of bullock is carrying this plow, that time the person who is operating this plow hold here with the handle and when they are passing to the farm, जब वो soil में से पास होते हैं, खेती में से पास होते हैं, it is preparation of soil, not a standing crop. So that time the person press it down. इसको नीचे की डायरेक्शन में प्रेस करते हैं with the help of handle so that as this is pointed it goes deeper into the soil and as the bullocks move forward
ये जो है ये इस डायरेक्शन में प्लाविंग का काम कर देता है और अल्टीमेटली सॉइल जो है वो बाहर आ जाती है। मीन्स टर्निंग ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस इन दिस वे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्लाव इज। Hoe is also same, little bit difference is there. What is the difference here? Difference is that plow shaft is also there, means that wooden wheel. They also have to carry with the pair of bullock. Handle भी होता है उसको, लेकिन यहाँ पे नीचे एक ऐसा आयरन ब्लेड होता है, iron blade, a thin sheet of iron blade. Why? Because this is used in two purposes. First, when you have to turn the superficial soil not as deeper as ploughing, and second, it is also used for weeding also. Weeding means to remove the weed. ये दो purposes होते हैं hoe के. Now, what is mean by cultivator? Cultivator is modern type of plough. Cultivator is modern type of plough which is driven with the help of tractor, and which have many plowshares. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लाव होता है उसे एक ही ऐसा पॉइंटेड प्लावशेयर होता है, वैसे बहुत सारे प्लावशेयर्स होते हैं ट्रैक्टर को। ओके, सो सपोज दिस इज द बेस एट विच द प्लावशेयर ऑफ द ट्रैक्टर इज फिक्स्ड। सो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा जो वाइड एरिया है दैट इज बीन प्लाउड एट अ टाइम। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू व्हेन वी हैव टू प्लाउ द फील्ड विच इज वेरी बिग एंड विच इज एट अ प्लेस, बहुत बड़ा एरिया जब हमें प्लाविंग करना है, टिलिंग करना है, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर ड्रिवन प्लाउ दैट इज कॉल्ड एज कल्टिवेटर। क्लियर? नाउ ये जो सारे इम्प्लीमेंट्स है, फार्म इम्प्लीमेंट्स है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है, that are used according to the area of land. If the area is small, then traditional method plow is been used for the plowing. Clear? What is the method of plowing? Now, ऐसा करना क्यों, प्लाविंग करना जरूरी क्यों होता है? सबसे पहली बात, जब प्लाविंग की जाती है that time what did I tell you कि जो नीचे की सॉइल है वो टॉप लेयर में आ जाती है। उससे क्या होता है, when we are plowing that time the lower layer of the soil comes up, so the most nutrient rich soil comes at the top level of the farm. So it is rich in humus, it is rich in nutrients, it is rich in microorganisms. So जब हम सीड सो करते हैं, सोइंग करते हैं हम, या फिर जो क्रॉप लगाते हैं, तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाता है। Second thing, when we are plowing that time the soil become loose, soil loose हो जाती है। उसके बहुत फायदे हैं। First benefit is that what, because soil is loose, the root can go easily deeper to absorb water and mineral. आराम से जा सकते हैं। अगर soil dry है, रफ है, तो वो जो एकदम से डेलिकेट जो रूट्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, वो जो अभी इमर्ज आउट हुए हैं जर्मिनेटिंग सीड से, वो इतना रफ या ड्राई या टफ सॉइल को छेद के अंदर नहीं जा सकते। दैट इज सेम फॉर द प्लूमेल्स, मतलब जो शूट है, जो ऊपर आने वाला है सॉइल से, ठीक है, उसके लिए भी ये चीज आसान हो जाती है जब सॉइल इज फ्री। ओके, थर्ड, व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर लूज मीन्स दैट सॉइल इज मोर एरिएटेड, एरिएशन ज्यादा रहता है उसमें। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, the suffocation of the germinating seed does not take place. Those seeds are getting proper air for their respiration. Roots mainly are getting proper air for their respiration. Along with that, when microorganisms which are present in the soil, which are beneficial for the growth of the plant, they are also getting proper air for their respiration. Clear? And sometime what happens, before plowing, if the field is very dry, बहुत ही ज्यादा सख्त जमीन हो गई है, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर और मे बी बिकॉज ऑफ हाई हीट, तो प्लाविंग करने के बाद बहुत ऐसे बड़े बड़े सॉइल के क्रम्स निकलते हैं, सॉइल के ऐसे बड़े बड़े क्रम्स निकलते हैं।
तो उनको क्या किया जाता है, उनको फिर लेवलर से लेवल किया जाता है या फिर ब्रेकआउट किया जाता है। ओके, सो उससे क्या होता है, ये जो बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं जिससे अनइवन सरफेस तैयार होता है, वो सरफेस मोस्ट इवन सरफेस में चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट इज योर लेवलर। लेवलिंग इज डन बाय लेवलर। किससे की जाती है, लेवलर से। अभी लेवलर क्या होता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। एक तो वुड का होता है या फिर आयरन का होता है। दिस लेवलर इज नथिंग बट अ बिग प्लांक ऑफ वुड। बहुत ही ज्यादा बड़ा, थिक और हेवी वुडन प्लांक होता है, विच इज ऑल्सो बीन कैरिड फॉरवर्ड बाय द पेयर ऑफ बुलक। Now, what is the function of this leveler? It is just pass on the field which has been plowed before. The plank of that wooden plank is passing above the crumbs of the soil. Because of that, they are broken into the small pieces, and most probably the soil get more loose. Now, because of that, what happens? Because of that, the land become even. तो सोइंग के लिए भी यूजफुल होता है, ठीक है, सोइंग के लिए भी यूजफुल होता है। एंड व्हेन वी आर इरिगेटिंग द फील्ड, दैट वाटर गोज ऑन द सेम लेवल। अदरवाइज अनइवन सरफेस होने से क्या होता है, किसी किसी जगह पे पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, किसी किसी जगह पे पानी पहुंच ही नहीं पाता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी मैंडेटरी दैट योर फील्ड शुड बी प्लेन, लेवल्ड, क्लियर। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ऑफ दिस लेवलिंग इज, जब हम प्लाविंग करते हैं ना, तो प्लाविंग करने के बाद एज आई टोल्ड यू सॉइल पार्टिकल्स बिकम लूज, फ्री हो जाते हैं वो, उससे सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। आई विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस। सॉइल इरोजन। नाउ व्हाट इज द सॉइल इरोजन? The removal of the uppermost or the fertile layer of the soil is called as the soil erosion. अभी वो रनिंग ऑफ वाटर से भी हो सकता है, मतलब रेन वाटर या वाटर फ्लो से भी हो सकता है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड करंट वहां से ब्लो हो रही है तो वहां से उसी की वजह से भी हो सकता है। बट इफ योर फील्ड इज लेवल, मतलब वो सॉइल पार्टिकल्स दब जाते हैं नीचे, इतने भी पैक नहीं कि रेडिकल और प्लूमल को प्रॉब्लम हो, लेकिन इतने भी लूज नहीं रहते कि वो इरोड हो जाए एयर के साथ या वाटर के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लेवलिंग। और लास्ट थिंग, अगर आपका जो फार्म है, जो लैंड है, वो लेवल है, तो आपको सोइंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू जज द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू सीड्स और टू सीडलिंग्स जो हम कल्टिवेट करने जा रहे हैं या सोइंग करने जा रहे हैं। सो इसके लिए लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज मैन्योरिंग। Okay, after tilling या plowing of the field, then we are going for leveling and leveler it is, it रह गया था। So manuring is there. Now what is manuring? जो भी फील्ड है जहाँ पे हम कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, सोइंग करने जा रहे हैं, वो लैंड अगर किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है, कोई न्यूट्रिएंट उसमें कम है, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा क्रॉप हो वो इतना ज्यादा हेल्दी ना हो। सो व्हाई टू टेक द रिस्क, एज वी आर प्रिपेयरिंग द सॉइल बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन, वी आर एडिंग मैन्योर इनटू दैट। वी आर एडिंग मैन्योर, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्योर, नॉट फर्टिलाइजर। ये बात ध्यान से याद रखना। सो वी आर मिक्सिंग द मैन्योर इनटू द सॉइल। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि पहले जो भी मैन्योर है वो स्प्रेड करके फिर प्लाविंग और फिर लेवलिंग करते हैं ताकि सॉइल और मैन्योर अच्छे से मिक्स हो जाए। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि प्लाविंग होने के बाद, लेवलिंग होने के बाद मैन्योर ऐड कर देते हैं फार्म में और उसके बाद वहां पे पानी देते हैं, मतलब पानी छोड़ते हैं उस खेती में, भले वहां पे कुछ सोइंग हो ना हो। दे आर इरिगेटिंग दैट लैंड regardless of any seeds are sown there. These are some steps in which we can prepare our soil
for the cultivation of crop, for the sowing of seeds. Now the next step in the agriculture, that is sowing, that we will see in the next session. Thank you.